मुझे स्ट्रिक्टली बोला गया, सब ने जो भी मेरे पीआर में इंटरेस्टेड थे, मार्केटिंग में इंटरेस्टेड थे, मेरे सारे एजेंट, सब ने बोला देखो अब तुम बाल नहीं काट सकते हो। आर्टिस्टों के मामले में मैं क्या करता हूँ, मैं कभी किसी को अप्रोच नहीं करता हूँ, बिकॉज मुझे बहुत डर लगता है कि कोई मुझे ना बोल देगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, तो इसलिए मैं किसी को अप्रोच ही नहीं करता हूँ। गाना अपने अंदर पहले बहुत ग्रो होने देता हूँ, वो गाने को इतने बार सुनता हूँ कि मेरे को गाना पसंद आने लगे, उसके बाद ही मैं कर पाता हूँ। मैं आज भी जो वीडियो बनाता हूँ अक्सर मैं कोशिश करता हूँ कि उसको मैं फ़ोन कैमरा से ही शूट करूँ, और मेरे जितने भी वीडियोज़ एक्चुअली वायरल गए हैं वो सारे फ़ोन शॉट ही थे। Ace choreographer Melvin Lewis, who enjoys a subscriber base of more than 2 million on YouTube and has multiple videos going viral, and also enjoys over 1 million followers on Instagram, recently got into a candid chat with us, and here we asked him about his journey, videos and more. Starting up from having a sports background to walking in suits as a banker and now a dancer, how has the journey been? I think it's been very interesting, very unpredictable. It was never a plan to actually be a dancer, so that's exactly why things kept changing and changing and changing. In short, if I have to say, I originally wanted to be a basketballer, then I got into investment banking, and then I moved to dance suddenly. But the journey has been very, very, very overwhelming. I think I've learned a lot throughout, and everything that I've learned in my life has helped me. And I am trying to really still trying to grow more and more every day. And in short, if I have to say that what is the most interesting part about my journey, I think always probably being on my toes has been the most primary aspect of my journey, because every day I work, I don't take a day off, and I hustle a lot. I'm always running in between places, I'm always traveling a lot, so it's a lot of fun. And I never thought that there would be a day like that where I would get so busy, but finally it's happening, so it's good. One thing both the other professions you were in taught you. I think the best part about the different professions and passions that are around us is that they teach you a sense of discipline, and you'll end up learning a lot from it. Like of course, like sports has really helped me be as disciplined as possible, be as dedicated as possible, and also it has taught me the importance of winning. And I've really been fortunate enough to take that personally and make it a part of me, and it has imbibed in me now, and it is an integral part of that. Also, investment banking has taught me a lot with regards to cultural exposures around the world. It has taught me how to accept people around the world, how to not differentiate between people easily, and that has been really good, because it has been a very encouraging experience to actually live by the element of to accept people, and just if you can be as disciplined as possible, be as courageous as possible to take those steps to actually win your own battles, is what basketball taught me. And then investment banking taught me how to think bigger, how to think larger than life, and also to have a very good sense of acceptance in life towards everything. You faced rejection for a dance reality show. After that, you came back stronger and produced your own videos. How was that? I think it's very important in life to fail sometimes, to actually pick yourself up and work more harder, more better, more stronger, be more effective. You learn from mistakes, you make from your errors. You sometimes are not at fault, but you still are learning from the process. Luckily, I think rejection has always helped me accept more challenges. I think I have really worked towards bringing this shell around me of positivity, to still believe that I can still make things happen, and I can still do wonders if I can just put myself into that place of being effective and hardworking. So all I've done probably is to work hard every day, and I've been very dedicated, and I've been very sincere, and I'm very proud of it. And not just me, it has been also my team that has always pushed me to bring out the best in me. I think I wouldn't have been able to do it all by myself. I think that would be very selfish of me. I have a very great team, and they help me put together everything that I want to, because ideas is something that is very naturally occurring to everybody, but how can you make these ideas happen is where these people matter. And I'm blessed that I have the right kind of people right now who help me achieve everything that I want to. So it's been very, very, very fulfilling. You're one of the initial players in creating YouTube dance videos in India. How did that idea start? See, the original idea of making videos with a self-shot camera was to empower people, to empower dancers to be specific, and teach them how they can use their skill to be presented to the world using the web platform.
मैं आज भी जो वीडियो बनाता हूँ अक्सर मैं कोशिश करता हूँ कि उसको मैं फ़ोन कैमरा से ही शूट करूँ। मेरा पहला प्रायोरिटी ये होता है कि मैं उसको फ़ोन कैमरा से शूट करता हूँ। अगर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है बिकॉज कोरियोग्राफी ऐसी है जहाँ पे आप मूवमेंट ज़्यादा डालते हो, देन वी मूव टू हायर एंड कैमरा सो दैट द लेंस इज़ अ लिटिल मोर वाइडर टू कैप्चर। अदरवाइज़ हम ज़्यादा करके वीडियोज़ शूट करते हैं वो फ़ोन कैमराज में ही करते हैं। और मेरे जितने भी वीडियोज़ एक्चुअली वायरल गए हैं वो सारे फ़ोन शॉट ही थे। तो आइडिया ये था कि अगर ये देश में कोई भी बच्चा कहीं पे भी डांस सीख रहा है और उसको परस्यू करना चाह रहा है, वो रोज़ अपने आप को ब्लेम करता है कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास एक गॉडफादर नहीं है, मेरे पास एक टीचर नहीं है। तो हमें वो स्टीरियोटाइप मेंटालिटी ऑफ आर्टिस्ट ब्रेक करना था कि आपको शायद उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, आप क्यों ना वो सारी चीज़ें उठा के जो आपके पास है उसका सही इस्तेमाल करो। और अगर आप बोल रहे हो चिल्ला के कि आपके पास टैलेंट है तो उसको आप प्रेजेंट क्यों नहीं कर रहे हो। तो वो पहले मेरा प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया था कि लाइक ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैं वीडियोस किस इंटरेस्ट से बना रहा हूँ। तो मेरा आइडिया था कि लाइक वो यंगर जनरेशन को उस तरीके से इंस्पायर कर पाऊँ। और दूसरी चीज़ ये थी कि मैं चाहता था कि डांस भी अ सेलिब्रेशन, यू नो। आप अक्सर मेरे वीडियोज़ में देखेंगे उसका जो वाइब होता है वो हैप्पीनेस होता है कि लाइक यू नो लेट्स डू समथिंग विच इज़ हैप्पी। बिकॉज आई थिंक वो मैंने बहुत मिस किया है व्हेन आई वॉच इवन performances otherwise, be it on web or be it on TV or be it on films also, कहीं ना कहीं वो genuine happiness I think I fail to find। तो मैं कोशिश करता हूँ कि यार अगर मैं कुछ क्रिएट कर पाऊँ जिससे लोगों को सिर्फ एक स्माइल भी मिल जाए फेस पे, तो आई थिंक आई हैव गॉट माई फ्रूट फॉर इट। Any specific reason you stayed away from dance shows? Yeah, I think primarily I have stayed away from dance shows maybe because I felt they were not the space where I wanted to be. I really enjoyed personal interaction with learners, with people who were beginners, with people who wanted to learn, because I have met a lot of people in my life who always wanted to do something with dance but have not been able to. So I really got into the ground level. That's why I stuck a lot to the studios. I taught a lot of batches. I met people personally. I understood where they were lacking. And it was always a challenging affair to make people dance who have these mental blocks that I am fat, or maybe I can't dance, or I'm 45 years old, I'm starting at 52 years old, how will I be able to pursue it? So I started wanting to help these people, and I was enjoying it. So I was consciously very away from dance shows because maybe dance shows were a thing of competition always in my mind. Like you go to compete on a dance show. Even tomorrow, if I ever go on a dance show, even to compete, I will make sure that I am in that form to actually be able to compete. When you want to compete, it's a little different. When you're competing, you have to prepare a lot. You have to really, really be very honest to yourself, dedicate yourself, and then compete. And then वो फॉर्म आपको तभी आता है जब आप एक साल का एफर्ट डेडिकेशन डालते हो और फिर आप एक कंटेस्टेंट की तरह जाते हो। लेकिन कहीं अभी लाइफ इतनी बिजी हो जाती है बिकॉज यू आर ट्राइंग टू do so many things and you have to run your kitchen, that you have to work also. आप एक अलग से 12 weeks शायद निकाल नहीं पाते हो just to do a dance reality show. We've always seen popular faces in your videos. Is that a conscious decision? Not at all. I think I am always open to all. मैं स्टार्ट में वीडियोस अपने स्टूडेंट्स के साथ बनाता था। मैं सोलोज भी करता हूँ, मैं डुएट्स भी करता हूँ, मैं ग्रुप डांसेस भी करता हूँ। एक्चुअली मैं चीज़ें सारी करता हूँ, लेकिन लोगों को जो पसंद आता है वो उन्हें याद रह जाता है। तो अक्सर उनको ये वीडियोस याद रह जाते हैं जो मैं आर्टिस्ट के साथ करता हूँ। और ऑफ कोर्स वो एक आर्टिस्ट अपील भी होती है बिकॉज उनकी एक रीच होती है, तो इट रीचेज अ लार्जर ऑडियंस। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट these artists is that they are very they are not actually dancers, most of them. They actually are trying to learn. So using them through my videos, I try to tell people that see, this is a singer who probably has never danced before but now is trying to dance. This other person is probably an actor but has inhibitions about dances but is wanting to come out and explore more in dance. So on the other side of the screen, I think people are also getting inspired. So they are also now going to their closest studio, taking up dance classes, pursuing dance in their own way, and that is exactly the message. The idea is not that, oh, we are two artists, we are collaborating together to make a bigger video. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि लोग इंस्पायर होके बाहर आए और खुद भी नाचें। One celebrity you wish to make a video with? I think every day I pray to myself कि as many people I can reach to, every artist I couldn't reach to, it'll be a blessing. हम ऑफ कोर्स हमारे फेवरेट्स तो बहुत सारे होंगे, हम सबके नाम लेंगे, बोलेंगे इसके साथ नाचना है, उसके साथ नाचना है। और फेवरेट्स अक्सर वो लोग होते हैं जो बड़े होते हैं, जो सबसे पॉपुलर होते हैं, जिनके पास और मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होते हैं। तो हम उनका नाम बिंदास इंटरव्यूज़ में दे देते हैं कि यार इसको सिखाया तो मज़ा आ जाएगा।
बट ट्रूथ ये होता है कि लाइक वो हर अच्छा इंसान जिसको डांस करने में इंटरेस्ट है और अगर वो आके 1 घंटे भी वाइब करता है और सीखता है और वीडियो बनाता है, हमें बहुत मज़ा आता है। सेम चीज़ विद आर्टिस्ट भी यही चीज़ है। मैं पहले मेरी थोड़ी इंप्रेशन अलग थी उनके बारे में, मुझे लगता था कि ये शायद कैजुअल होंगे, इतने हार्ड वर्किंग नहीं होंगे, ये कम मेहनत करना चाहेंगे। बट जब वो आते हैं और यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, द डेडिकेशन लेवल इज़ मच हायर दैन वी रेगुलर पीपल। तो इसलिए पता चलता है कि आप आर्टिस्ट आज क्यों हो, इतने पॉपुलर क्यों हो, बिकॉज आप उतना देने के लिए तैयार है एफर्ट के तरीके से, और हम कोशिश करते हैं उनका बेस्ट हम निकाल पाएँ उस उतने से टाइम में। फेवरेट आर्टिस्ट टू बी ऑनेस्ट मैंने नहीं सोचा है सच में। अभी मैं सोच रहा हूँ कि लाइक ऐसा क्यों नहीं सोचा है मैंने, लेकिन अगर कोई होता ना तो आई थिंक अभी तक मैं उनको मना के फीचर कर ही लेता था। क्योंकि एक्चुअली मैं हमेशा आर्टिस्टों के मामले में मैं क्या करता हूँ, मैं कभी किसी को अप्रोच नहीं करता हूँ, बिकॉज मुझे बहुत डर लगता है कि कोई मुझे ना बोल देगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, तो इसलिए मैं किसी को अप्रोच ही नहीं करता हूँ। लेकिन मैं रुकता हूँ कि लाइक सामने से अगर किसी का बुलावा आ गया कि मेलविन आपके साथ कोलैबोरेट करना है, तो आई एम ऑलवेज गेम फॉर इट। Tell us the factors you keep in mind and are particular about while making your videos. आई थिंक बहुत सारे वीडियोस बनाने के बाद आपको अपने आप अंदाज़ा आ जाता है कि आपके वीडियो में क्या अच्छा लग रहा है और क्या नहीं, तो फिर आप वो छोटे छोटे चेंजेस करते हो। अरे वीडियो डार्क था तो फिर एक्स्ट्रा लाइट लगा दिया। फिर हम एक्चुअली मैं अभी जब वीडियोस बनाता हूँ मैं कॉन्शियसली एक ही एफर्ट रखता हूँ कि उसमें जब लोग उसको देखें उनको वो पसंद आए। तो मैं एक प्राइमरी चीज़ उसके लिए म्यूज़िकलिटी पे बहुत फोकस करता हूँ कि जो म्यूज़िक है उसके हिसाब से उसको जस्टिफाई कर पाऊँ। मतलब कोई भी गाना ऐसा नहीं है जहाँ पे मैं उसको कोरियोग्राफ करता हूँ ये बोल के कि ये मेरे स्टेप्स है और ये गाना है, अब ये स्टेप्स को मैं ये गाने में डाल दूँगा। मैं एक्चुअली म्यूज़िक को ही लेके उसमें ही सोचता हूँ, और ऐसे बहुत सारे कोरियोग्राफर हैं जो ये सेम चीज़ करते हैं, बट मैं कॉन्शियसली करता हूँ कि लाइक अगर मेरे को फोर्सफुल लगता है तो मैं वो गाना करता ही नहीं हूँ। तो ऐसे बहुत सारे गाने ऐसे भी हैं जो मैंने ट्राई किए हैं लेकिन मेरे को लगा कि मैंने जस्टिस नहीं किया, तो आई हैव नॉट शॉट इट, तो देन आई रिक्रिएटेड। फिर कुछ दिनों बाद वापस से आई ट्राई एंड कम अप विद फ्रेश कोरियोग्राफी। तो म्यूजिकलिटी एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि इट शुड बी ईजी फॉर पीपल हु आर ऑल्सो डांसिंग विद मी टू लर्न। अगर मतलब मैं पहले मैं जो डांसिंग करता था उसमें मैं इतना तोड़ फोड़ करता था, इतना मचाता था कि लोगों को देख के डर लगता था ये तो हम नहीं कर पाएंगे। तो वो शो ऑफ बिजनेस छोड़ दिया मैंने बोला यार मैं तो कर लूँगा ठीक है, लेकिन कोई और नहीं कर सकता तो उसको ज़बरदस्ती क्यों करवाना है। तो मैं ये नहीं मानता कि लाइक डांस ऐसी चीज़ है कि आप जब कुछ एकदम एडवांस लेवल का करोगे तो ही आपको अच्छा लगता है, नहीं। तो इसलिए मैं उसको ट्राई करता हूँ कि जब ज़रूरत नहीं है तो एक्स्ट्रा शो ऑफ नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि इसको कम टाइम में करो और अच्छे से करो, बिकॉज अक्सर क्या होता है अब जब एलोंगेट करते हो प्रोसेस तो वीडियो बन ही नहीं पाती, तो इसलिए उसको बहुत फास्ट करना और क्रिस्प रखना ज़रूरी होता है। और चौथी चीज़ ये है कि मैं वो गाना अपने अंदर पहले बहुत ग्रो होने देता हूँ। वो गाने को इतने बार सुनता हूँ कि मेरे को गाना पसंद आने लगे, उसके बाद ही मैं कर पाता हूँ। Tell us about this much talked about hairstyle you have. तो ये एक्चुअली पूरा हुआ है एक फ्लूक में, ये पूरा हेयर स्टाइल बना है। मैं बताता हूँ कैसे हुआ। तो पहले ये चालू हुआ है सिलसिला कॉलेज से। तो कॉलेज में जब मेरे बाल ग्रो हो रहे थे तो लोगों ने नोटिस किया और बोला यार तुम्हारी हेयर क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। और अक्सर ना ये लड़कियाँ होती हैं जो चालू करती हैं काम, ठीक है। लड़कों को कुछ पड़ा नहीं होता। लड़कियाँ आती बोलती अरे तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, तुमको तो बढ़ाने चाहिए, इतने कम क्यों। तो हम भी ऐसे शौक से अरे अभी बोल दिया तो अभी करना है, तो फिर अपन भी फिर और ऐसे बढ़ाने लग गए। तो फिर बाल यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए। तब जब पहुँच जाते फिर मैनेज नहीं होते, इधर से हवा आता है तो इधर लगे। तो मेरे को तो आज तक नहीं पता लड़कियाँ कैसे मैनेज कर लेती है। तो फिर मैंने नोटिस किया कि सब बांध के रख दे, तो मैं फिर उसको थोड़ा बांधने लग गया। फिर बांधने लग गया तो एक अब्सर्ड सा ना पोनी बन गया था। तो जब मैं डांस करता था और मैं सडन मूव देता था तो मैं तो रुक जाता था, लेकिन वो पोनी पीछे से हिलती थी। तो बोला यार ये ना मेरा पूरा मूवमेंट ख़राब कर रहा है। तो फिर मैंने उसको इतना बढ़ाया कि वो इधर तक पहुंच गया। जब इधर तक पहुंचा और मैं सैलून गया था तो वहाँ पे 2 लड़कियाँ आई थी जिन्होंने अपना हेयर डोनेट किया था टू कैंसर पेशेंट, और मुझे वो आइडिया बहुत पसंद आया। मैंने बोला यार ये बहुत नेक चीज़ है, इसके लिए मैं बाल बढ़ाऊँगा। फिर मैंने बाल उसके लिए बढ़ाना शुरू किया और मेरे वीडियो हो गए वायरल। तो जब वायरल हुए तो मुझे स्ट्रिक्टली बोला गया, सब ने जो भी मेरे PR में इंटरेस्टेड थे, मार्केटिंग में इंटरेस्टेड थे, मेरे सारे एजेंट, सब ने बोला देखो अब तुम बाल नहीं काट सकते हो, कुछ समय तक लोगों को तुम्हारा चेहरा याद रहना बहुत ज़रूरी है। तो वो हुआ ऐसा कि वो बन गया और वो बन ऐसे ही रह गया, और अभी मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग वो बन से ही मुझे आइडेंटिफाई करते हैं। बट वेरी सून मैं जब भी बाल काटूंगा, आई एम डेफिनेटली ग्रोइंग इट, आई हैव नॉट कट इट येट, एंड जब भी मैं काटूंगा आई एम गोना डोनेट इट टू कैंसर पेशेंट्स, एंड इट इज़ अ वेरी नेक थिंग टू डू, एंड पीपल आउट देयर हु हैव गुड हेयर शुड ऑल्सो डू इट. Also, it's your hat trick here at the YouTube Fan Fest. How is the feeling of being recognized and your experience?
Nee, I'm really grateful to the whole team of YouTube for giving me the opportunity. This is going to be my third year और मतलब recognition का तो मुझे इतना नहीं पड़ा लेकिन nervousness बहुत होती है. I think the best part that happens about performing on a live stage is that आप बहुत nervous होते हो तो आप ज़्यादा prep करते हो. तो अपने आप आपका जो body conditioning और mind conditioning level जो होता है वो आप उसको थोड़ा ऊपर ले जाते हो. And I am really trying to give it my best all the time. इस साल पता नहीं क्या होगा. I have not started practice yet, but hopefully people enjoy the show, and I am looking forward to more such performances in coming time. और I think YTFF की सबसे अच्छी बात यह है कि they give creators an opportunity. मतलब मैं तो फिर भी बहुत जगह शोज़ करता हूँ, परफॉर्म करता हूँ, तो मुझे एक स्टेज नसीब हो जाती है. लेकिन बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनके लिए ऐसे स्टेजेस हैं नहीं जो आके यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं. एंड आई एम सो ग्लैड दैट बिकॉज ऑफ दिस वन इवेंट इंडिया का लेवल जो है बहुत ऊपर जा रहा है व्हेन इट कम्स टू कंटेंट. तो बहुत नया कंटेंट देखने मिल रहा है. हाय, दिस इज मेलविन लुइस एंड यू आर वाचिंग मी ऑन इंडिया फोरम्स. We hope that you guys enjoyed this chat with Melvin. If you did, do comment and tell us. Simran Mishra, camera person Mangesh and Babaji, India Forums, Mumbai.